First of all, thanks to all for joining. Basically, today's webinar purpose is discussion for GSTR 9 and 9C, because all we know 31st December is last date for filing GSTR 9 and 9C, and that is fast approaching. Today, what will be our approach? We'll be just discussing fundamentally what are things in GSTR 9 and 9C, what precautions we have to take, and how we are to see the things. Just basic, it is required for GSTR 9 is required if the aggregate turnover is above 2 crores. 9C is required when aggregate turnover is more than 5 CR. Who are exempted? Who are not required to file 99C: casual taxable person, ISD, non-resident taxable person, and the persons covered in section 51 and 52. Now, very small question that usually comes: if you are not filing GSTR 9 and 9C within time, what is the late fees applicable? Whether it is applicable separately for 9C, or it is for only for 9, or it is only for 9C. Basically, it is 200 per day, 100 GST, 100 as GST, or 0.50% of the turnover of the. Basically, how it will be calculated, that will given circular has came on 30th January 2025, circular number 246. इसमें what we have to see कि GSTR 9 कब फाइल हुआ है और GSTR 9C कब फाइल हुआ है. GSTR 9 की कैलकुलेशन विल बी सिंपल. जो हमारी ड्यू डेट है उसके बाद जब हमने 9 फाइल किया है उस डेट तक की लेट फी कैलकुलेट होगी. फॉर एग्जांपल 31st December is the last date and we have filed our GSTR 9 and 9C on let's say 5th of January 2026. There is a delay of 5 days, 5 into 200 rupees. That means 1000 rupees will be applicable as a late fee, and one change in this year, that late fee will appear in 9 when we will filing 99C. That will be appearing automatically there, and it has to be deposited. What for 9C? अगर हमने 9 और 9C को एक साथ डिपॉजिट कर दिया है तो 9C की कैलकुलेशन करने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी, but it has to be deposited separately when we are filing 9C and 9 on different dates. Suppose we have filed GSTR 9 on 5th of January and we have filed GSTR 9C on 10th of January. Then for GSTR 9, the late fee will be applicable for 5 days, and for 9C it will be calculating when it was filed. GSTR 9 was filed, so it was filed on 5th. So after that, 5 days will be applicable for the late fee. That means, in short, how the late fee has to be calculated. We have to see what is the due date. In this scenario, it is 31st December 2025. What we have to see कि हम अपने 9 को कब फाइल कर रहे हैं और 9C को कब फाइल कर रहे हैं. अगर हमने 9 और 9C को एक साथ फाइल किया है तो लेट फी सिंपली हमने जिस दिन फाइल किया है उस दिन तक की डेट के हिसाब से लेट फी कैलकुलेट हो जाएगी. बट इफ वी हैव फाइल्ड 9 and 9C ऑन द डिफरेंट डेट्स, then first we'll calculate the late fee on the 9. जिस दिन भी हमने GSTR 9 अपना फाइल किया है उस दिन तक की डेट का कैलकुलेशन करके लेट फी विल बी पेड, एंड 9C की कैलकुलेशन जब हमने GSTR 9 फाइल किया है उसके बाद से 9C की डेट लेट फी पे होगी. तो दैट इज द मेथोडोलॉजी गिवन इन सर्कुलर नंबर 246 ऑफ January 2025. अब व्हाट वी हैव डिस्कस्ड वन थिंग कि अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो मेरे को 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है, और 5 करोड़ से नीचे है तो 9C इज ऑप्शनल. अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एग्रीगेट टर्नओवर. तो एग्रीगेट टर्नओवर बेसिकली वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जब हम 9 और 9C फाइल कर रहे हैं दैट हैज टू बी फाइल्ड स्टेट वाइज. दैट मीन्स अगर मेरी एंटिटी के 10 रजिस्ट्रेशन है, 10 GST नंबर है, तो मेरे को 10 99C फाइल करने पड़ेंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, क्या मैं टर्नओवर एग्रीगेट बेसिस पर देखूंगा और हाउ विल बी सीन. तो मैं एग्रीगेट टर्नओवर देखने के लिए पूरे ऑल इंडिया लेवल के टर्नओवर को देखूंगा और उसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई को भी कवर करूंगा.
दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्सपोर्ट है वो भी कवर करूंगा। बहुत जो फेमस एग्जांपल है, मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल का टर्नओवर जो एग्जाम्प्टेड स्कूल से बच्चों से जो फीस लेता है दैट लेट्स से 5 करोड़, उसने कोई रूम अपना कोई रेंट पे कोई अकोमोडेशन दी हुई है, कोई ऑफिस दिया हुआ है जिसकी टोटल इनकम 50 लाख इन ईयर है, तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर विल बी एक्सेडिंग 5 करोड़, 5 crore plus 15 lakhs. So in that case, 9 and 9C will be applicable. So what the point is here, to see the eligibility of 9 and 9C, to see the limit of 2 crores and 5 CR, what we have to see, number one, we have to see the turnover on all India basis. Number two, we don't have to see only the taxable turnover, we have to see all taxable turnover and all exempted supplies, and on that basis that threshold limit will be calculated and 9C requirement we will decide कि हमें 9 और 9C फाइल करना है या नहीं करना है। Now one of the basic question कि 9 और 9C critical क्यों है, why it is important, क्योंकि 9C से ना तो मेरे को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्स्ट्रा मिलेगा और ना ही मेरे को इससे कुछ एक्स्ट्रा क्लेम मिल पाएंगे। व्हेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, फॉर दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जैसे हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो पूरे साल भर की एक बैलेंस शीट बनती है जिसमें उसके सारा प्रॉफिट, सारा लॉस और सारी इनकम, सारे एसेट्स डिस्क्लोज हो जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में हम आईटीआर फाइल करते हैं, वो आईटीआर बेसिकली डिस्क्लोज करती है कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की मेरी टोटल इनकम कितनी है, मैंने कितनी एग्जम्पशन क्लेम करी, उस पूरे साल भर का टैक्स कितना बनता है। अगर हम जब जीएसटी के अंदर आते हैं तो जीएसटी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, इवन 9C फाइल करते समय, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से 9 और 9C इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। जब मैं फाइनेंशियल 24-25 की बात कर रहा हूं तो मेरे जो रिटर्न्स फाइल हुए हैं GSTR 1 and 3B, दे आर नॉट लिमिटेड ओनली टू 24-25। मेरे 24-25 के जो मैंने रिटर्न्स फाइल किए हैं उसमें हो सकता है 23-24 का डाटा हो, 24-25 का डाटा 25-26 के अंदर हो। दैट मीन्स मेरे जो फाइनेंशियल डाटा जो मैं अपने रिटर्न्स फाइल किए हैं GSTR 1, GSTR 3B, दे आर नॉट लिमिटेड टू माय फाइनेंशियल ईयर। उसमें मेरे 24-25 में 23-24 का भी डाटा है, 24-25 का डाटा 20-26 में भी है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस सारे डाटा को प्रॉपरली रिकंसाइल करें और उस रिकंसाइल करके कंसोलिडेटेड वे में 9 और 9C के अंदर बेसिकली फाइल करें, क्योंकि 9 and 9C इज ओनली द रिटर्न जिससे मेरे को कंक्लूसिवली पता चलेगा कि मेरा GSTR जो GSTR टर्नओवर है या जो 24-25 से रिलेटेड मेरा टोटल टर्नओवर कितना है, टोटल इनपुट टैक्स रेट कितना है। क्योंकि GSTR 9 और 9C के अलावा मेरा जीएसटी में कोई ऐसा रिटर्न नहीं है जिससे मेरे को पूरे फाइनेंशियल ईयर की कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मिल पाए। दिस इज द ओनली रिटर्न जिससे कि मेरे को पूरे साल भर की एक इंफॉर्मेशन मेरे को मिल जाती है। एंड दैट्स व्हाई ये डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अदरवाइज हम देखें तो हमारे जो जीएसटी इंफॉर्मेशन है या जीएसटी डाटा है दैट इज सेग्रीगेटेड इन 18 मंथ्स, और उस 18 मंथ्स में भी पिछले साल का भी डाटा क्लब हो सकता है। सो फ्रॉम डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या रेवेन्यू परस्पेक्टिव ऑल्सो, GSTR 9 and 9C इज द ओनली रिटर्न जिससे कि एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेरे पूरे 24-25 में मेरा टोटल मेरी टर्नओवर कितना है, मेरी टोटल एग्जम्प्टेड सप्लाई कितनी है, मेरा टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, टोटल रिवर्सल्स कितने हैं, 37 में कितने रिवर्सल है, 42-43 रिवर्सल है, और मैंने अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अपने टर्नओवर को डिक्लेयर किया है या जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किए हैं विज मैंने अपने जीएसटी रिटर्न्स में क्या फाइल किया है। तो ये एक डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट डाटा टू असेस द टैक्स पेयर की जो कंप्लायंस जीएसटीआर की है वो किस लेवल की है। दैट्स व्हाई जो 74 के नोटिस हैं जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वो हमारे जीएसटी एनुअल रिटर्न की डेट से ही लिंक है। तो व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर कि GSTR 9 and 9C इज नॉट लाइक एनी अदर रिटर्न। इससे मेरे को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे पूरे साल भर की इंफॉर्मेशन कंपाइल हो रही है एंड वो कंपाइलेशन हम ही डिक्लेयर कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। तो वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन वी आर कंपाइलिंग दिस इंफॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंटिंग इन 9 and 9C, क्योंकि हमने अगर उस इंफॉर्मेशन को सही से रिप्रेजेंट नहीं किया तो दैट में भी रीजन कि कल की डेट में हमें कोई नोटिस या डिपार्टमेंट से कोई
किसी तरह का नोटिस या इंफॉर्मेशन के लिए वी गॉट द लेटर और वी गेट द शो कॉज नोटिस। तो इट इज वेरी क्रिटिकल कि हम GSTR 9 और 9C के कंपोनेंट को सही से समझ के अपने जो हमारे डाटा है वो जिस रिक्वायर्ड फॉर्मेट में जिस तरह से वो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए उसी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन सबमिट करके और उसके बैकवर्ड कैलकुलेशन जो हमारे पास होने चाहिए उन कैलकुलेशंस को रख के देन वी हैव टू फाइल GSTR 9 एंड 9C। दूसरा चैलेंज जो हमारे पास जब हम GSTR 9 और 9C फाइल करते हैं वो ये आता है कि लाइक जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं कॉर्पोरेट में जहां मल्टीपल मेरे बेसिकली रजिस्ट्रेशन है, मल्टीपल स्टेट में मैं ऑपरेट कर रहा हूं, या मैं जब इनकम टैक्स फाइल करता हूं तो मेरे को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा दिल्ली में क्या ट्रांजेक्शन है, बॉम्बे में क्या ट्रांजेक्शन है, वेस्ट बंगाल में क्या ट्रांजेक्शन है। आई सिंपली टेक वन बैलेंस शीट, आई सिंपली फाइल वन ITR। लेकिन जब मैं 9 और 9C फाइल करूंगा तो दैट 9C हैज टू बी फाइल्ड स्टेट वाइज GSTN वाइज एंड दैट बिकम्स अनदर चैलेंज कि मेरी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट एक कंसोलिडेटेड पैन पर बेस्ड है मेरे को, लेकिन 9 और 9C जो फाइल करने हैं that has to be filed on GSTN basis and that reconciliation of financials has to be done at the GSTN level. So that becomes another challenge when we file the GSTR 999C. ये मैंने डिस्कस कर लिया बेसिकली। GST पर्सपेक्टिव अलग है, हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी और अलग है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है कि व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने अपने टर्नओवर को क्या दिखाया है और अपने फाइनेंशियल्स में टर्नओवर को क्या दिखाया है और उन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है वो वी हैव टू आइडेंटिफाई। और वो आइडेंटिफिकेशन मेरे अकाउंटिंग पॉलिसी के रीजन पर बेस हो सकता है या मेरे टाइम डिफरेंस की बेस हो सकता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि GST के अंदर हम रिटर्न्स को रिवाइज नहीं कर सकते बट अमेंड कर सकते हैं, और अमेंडमेंट की जो बेसिकली टाइमलाइंस हैं वो बेसिकली सबकी जो टाइमलाइंस है मैक्सिमम अमेंडमेंट्स की टाइमलाइंस जो हैं वो 30 नवंबर है। दैट मीन्स अक्टूबर का जो हम रिटर्न फाइल करेंगे दैट इज द लास्ट रिटर्न इन विच अगर हमारे कोई 24-25 में कोई एरर रह गई थी या कोई हमें करेक्शन करने की जरूरत थी तो दैट कैन बी डन। GSTR 1 का रेक्टिफिकेशन हम 30 नवंबर तक कर सकते हैं, यानी कि अक्टूबर का जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें कर सकते हैं। GSTR 3B का जो करेक्शन है अगर कोई रह गई गलती इवन देन उसकी करेक्शन को हम अक्टूबर के रिटर्न तक कर सकते हैं विच कैन बी डन अप टू 30 नवंबर। अगर कोई हमारा क्रेडिट नोट परटेन करता है 24-25 के लिए तो उसका भी हम फाइल कर सकते हैं इन अक्टूबर रिटर्न जिसकी मैक्सिमम डेट 30 नवंबर 2025 है। एक जैसे हमने आज तक डिस्कस किया कि स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन हैं, तो जब हम रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे GST रिटर्न के हिसाब से एक मैं कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी जो रिटर्न के अंदर डाटा कैसे जाएगा वो हम डिस्कस कर सकते हैं करेंगे। तो बेसिकली मेरा फर्स्ट व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट कि मैंने जो 3B फाइल किए हैं 24 से 25 में, यानी कि अप्रैल 24 से लेके 25 तक जो 3B फाइल किए हैं उसका जो टर्नओवर है वो बेसिक फिगर हो गई। उसमें से मैंने जो 23-24 की फिगर इंक्लूड करी है, अगर कोई फिगर मैंने 23-24 के टर्नओवर को 24-25 के GSTR 3B में घटाया तो दैट आई विल रिड्यूस इट, एंड अगर मैंने 24-25 के टर्नओवर को कोई 25-26 के रिटर्न में शो किया है तो आई विल बी एडिंग दैट, एंड इन तीनों को जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी द एक्चुअल टर्नओवर ऑफ 24-25 एंड दैट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इनटू GSTR 9 अल्टीमेटली। देखिए अल्टीमेटली अगर हम GST के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दो ही चीजें हैं, आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स मेरा आउटवर्ड सप्लाई प्लस मेरी जो इनवर्ड सप्लाई है सब्जेक्ट टू RCM उसके ऊपर मेरा आउटपुट टैक्स लगता है। तो मेरे को क्या देखना है 24-25 का जो मेरा करेक्ट आउटपुट टैक्स है वो मैं कैलकुलेट करूं, तो उसका तरीका क्या है 24-25 का डाटा उसमें से 23-24 के डाटा को हम रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, प्लस जो 24-25 का डाटा हमने 25-26 में शो किया है उसको ऐड कर देंगे। दैट इज अ बेसिक फंडा टू कैलकुलेट my revenue for the purpose of GSTR 9. जैसे हमने रेवेन्यू की बात करी कि रेवेन्यू मेरा 24-25 का 25-26 में भी है, 24-25 में 23-24 का भी है। सिमिलरली मैं जब ITC की बात करता हूं तो ITC के अंदर भी मेरा जो है जो मेरे 3B में ITC क्लेम किया है 24-25 में 23-24 का भी है, 24-25 में 24-25 का भी है, और 24-25 में का जो ITC है वो 25-26 में भी क्लेम किया है। तो इन दैट वे
जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे रिटर्न फाइलिंग में GSTR 9 में आता है और जो आएगा वो यही है कि मेरे जो स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन हैं वो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं और कैसे अपने रिटर्न के अंदर रिफ्लेक्ट करूं। अदरवाइज तो मेरे को पता है कि मैंने कितना टर्नओवर दिखाया है, कितना मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है। तो जो सारी कहानी GSTR 9 और 9C के अंदर चैलेंज खड़ा होता है या जितने भी इश्यूज अराइज होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि मेरे स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन 23-24 के 24-25 में है और 24-25 के 25-26 में है। अगर हम GSTR 9 की बात करें तो GSTR 9 में ऑल वी नो, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल कि मेरी आउटपुट सप्लाई के लिए टेबल 4 और 5 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए टेबल 6 और 8 है, टैक्सेस पेड के लिए सेक्शन टेबल 9 to 15 है और 16 to 18 में मेरी दूसरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, एचएनएस समरी वगैरह डिटेल आ जाती है। ऐसी 9C के अंदर हम देखें तो बेसिकली पार्ट 2 मेरे टर्नओवर रिकंसिलिएशन के लिए है। उसमें पहले मैं ग्रॉस लेवल पे रिकंसिलिएशन करता हूं, फिर उसके बाद में मैं टैक्सेबल टर्नओवर का रिकंसिलिएशन करता हूं। और कोई डिफरेंस आता है रिकंसिलिएशन किस चीज में? रिकंसिलिएशन बेसिकली मैं जो GSTR 9 फाइल करता हूं दैट इज बेस्ड ऑन माई रिटर्न फाइल, जो मैंने अपने 3B फाइल किए हैं, जो मेरे 2B में डाटा ITC का आ रहा है, जो मैंने GSTR 1 फाइल किए हैं या जो मैंने अमेंडमेंट 1A में फाइल किए हैं, उसके बेसिस पर मैं अपने इंफॉर्मेशन को GSTR 9 में कंपाइल करता हूं। उस GSTR 9 के कंपाइलेशन से आई विल बी गेटिंग व्हाट इज माय टर्नओवर एंड व्हाट इज माय इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर 24-25। 9C के अंदर व्हाट आई विल डूइंग, जो मैंने GSTR 9 के अंदर डाटा डिराइव किया है, क्या डाटा डिराइव किया है? मैंने डाटा डिराइव किया है व्हाट इज माय आउटवर्ड सप्लाई, व्हाट इज माय आउटपुट टैक्स। तीसरा मैंने डाटा डिराइव किया है कि मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मैंने अवेल किया है। अब मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी फाइनल हुई हैं, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से मतलब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं। तो 9C इज बेसिकली अ रिकंसिलिएशन कि जो GSTR 9 के अंदर जो डाटा डिराइव हुआ है, जो मैंने 3B 1 1A और 2B के बेसिस पर अपने डाटा को डिराइव किया और इंफॉर्मेशन कंपाइल करी है, उस कंपाइल्ड डाटा का जो रिकंसिलिएशन है वो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से करता हूं। वो बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसिलिएशन 3 चीजों का है। पहला एक टर्नओवर का रिकंसिलिएशन है, टैक्सेस जो मैंने पेड किए हैं उसका रिकंसिलिएशन है, और तीसरा ITC का रिकंसिलिएशन है। टर्नओवर के रिकंसिलिएशन को ब्रॉडली मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला है कि ग्रॉस टर्नओवर। ग्रॉस टर्नओवर का मतलब है कि उसमें मेरी एग्जम्प्टेड टैक्सेबल सारे सप्लाई इंक्लूड हो जाएगी, और दूसरा रिकंसिलिएशन है टैक्सेबल टर्नओवर, फिर टैक्सेस पेड का, और तीसरा रिकंसिलिएशन ITC रिकंसिलिएशन। अब हम बात करते हैं GSTR 9 की। GSTR 9 के अंदर बेसिकली हम बात करें तो टेबल 4 एंड टेबल 5 दो टेबल हैं जिसमें कि आउटवर्ड सप्लाई एंड आउटपुट टैक्स की डिटेल जाती है। टेबल 4 के अंदर जो डिटेल जाती है दैट इज बेसिकली जो मेरी टैक्सेबल सप्लाई है उसकी डिटेल जाती है या ये मैं कहूं वो ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर मेरे आउटपुट टैक्स बनता है वो ट्रांजेक्शन की डिटेल टेबल 4 में जाती है। क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि टेबल 4 के अंदर वो RCM भी जाएगा, वो ट्रांजेक्शन भी जाएंगे RCM में जिसमें मेरे को टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी GTA की सर्विसेज ले ली, मैंने कोई एडवोकेट की सर्विसेज ले ली, तो वो जो सर्विसेज हैं वो मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरे आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, लेकिन मेरे को उसके ऊपर आउटपुट टैक्स पे करना है, तो उसकी डिटेल टेबल 4 के अंदर जाएगी। तो टेबल 4 के अंदर बेसिकली वो सारी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल जाती हैं जिन ट्रांजेक्शन से मेरे आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट होती है। वो ट्रांजेक्शन्स को हम किस किस कैटेगरी में बाइफरकेट करेंगे? वो हम बाइफरकेट करेंगे B2B ट्रांजेक्शन्स में, वो हम बाइफरकेट करेंगे एक्सपोर्ट्स में, SEZ में, बीइंग एक्सपोर्ट में। मेरे 31 मार्च को जो पेंडिंग एडवांसेस हैं, क्योंकि जो मेरे को सर्विसेज के एडवांस मिलता है दो दैट इज नॉट आउटवर्ड सप्लाई, लेकिन मेरे को उस पर GST की लायबिलिटी आती है। मेरा अगर उसी साल में एडजस्टमेंट हो गया है तो वो एडजस्टमेंट GSTR 1 के अंदर हो जाता है, लेकिन जो 31 मार्च को जो मेरे पेंडिंग एडवांसेस बचे हैं उसकी डिटेल, इनवर्ड सप्लाई जिसमें कि मेरे को RCM में पे करना है उनके लिए, और ई-कॉमर्स ऑपरेटर अगर उनको सेक्शन 9(5) के अंदर कोई लायबिलिटी आती है तो वो जो टर्नओवर उनका नहीं है लेकिन उनकी लायबिलिटी क्योंकि सेक्शन 9(5) में है, तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए जो सप्लाई है वो टेबल 4 में जाएंगी। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, टेबल 4 के अंदर ई-कॉमर्स ऑपरेटर रिपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ई-कॉमर्स आशु डालमिया ने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी, जिसमें कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर को सेक्शन 9(5) में टैक्स पे करना है,
तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उन ट्रांजेक्शन को टेबल 4 में दिखाएगा और आशु उस ट्रांजेक्शन को टेबल 5 में दिखाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मेरे को टैक्स पे नहीं करना है। तो बेसिकली मोटा मोटा टेबल 4 के अंदर वो सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे जिन ट्रांजेक्शन को हमने 24, 25 में डिक्लेयर किया है और जिससे हमारे आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी बनती है। वो मेरे आउटवर्ड सप्लाई भी हो गई, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई हो गई, मेरे आरसीएम के ट्रांजेक्शन हो गए। मैं अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं तो और मेरे को सेक्शन 95 में टैक्स पे करना है तो वो वाली सप्लाई कवर हो गई, प्लस इसके जो भी अमेंडमेंट डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हैं वो हम सेपरेटली यहाँ पर शो करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट नोट क्रिएटेड हो जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट नोट से हम अपने देखिए बाकी जितने ट्रांजेक्शन हैं, चाहे B2B सप्लाई है, एक्सपोर्ट्स है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स है, पेंडिंग एडवांसेस है या आरसीएम में ट्रांजेक्शन है, उसमें मैं अपने आउटपुट टैक्स को इंक्रीज करता हूं। लेकिन क्रेडिट नोट आर द ट्रांजेक्शन जिसमें मैं अपने आउटपुट टैक्स को कम कर रहा हूं, यानी कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करना को कम पे जा रहा है बिकॉज ऑफ द क्रेडिट नोट। तो फ्रॉम डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं क्रेडिट नोट की डिक्लेरेशन यहाँ पर कर रहा हूँ, कितनी अमाउंट है, वो बिकम्स क्रिटिकल कि हमने सेक्शन 34 की कॉम्प्लायंस को पूरा करा है या नहीं करा है। तो टेबल 4 से बेसिकली मेरा जो टैक्सेबल टर्नओवर है वो मेरा डिटरमाइन हो जाता है और उस वही मेरा आगे के लिए बेस बनेगा फॉर टैक्सेबल टर्नओवर रिकंसिलिएशन इन GSTR 9C। वही मेरा बेस बनेगा कि मेरे कितने टैक्स की लायबिलिटी बनती है बिकॉज ऑफ द टेबल 4। ये बेसिकली अगर हम टेबल 4 की डिटेल देखें तो दिस इज अ फॉर्म की डिटेल आ जाती है। सप्लाई टू B2C, B2B, जीरो रेटेड सप्लाई, SEZ सप्लाई, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, एडवांसेस, इनवर्ड सप्लाई सब्जेक्ट टू आरसीएम, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को अपनी सप्लाई डिक्लेयर करना है। देन द टेबल 4H दैट विल गिव द टोटल आउटपुट टैक्स या टोटल आउटवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर की आउटपुट टैक्स पे होना है। देन उसके बाद में मेरे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, यानी कि जो अमेंडमेंट हैं दैट ऑल विल कम हियर एंड एन के अंदर मेरी टोटल टैक्सेबल सप्लाई 24, 25 की आ जाएगी जो कि मेरे को इसमें टैक्स पे करना है। लेकिन अब इसमें एक डिस्कशन मेरे को बस ये करना है यहाँ पर टेबल 4 के अंदर। देखिए टेबल 4 में हमने उन ट्रांजेक्शन्स को लिखा है जिन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर मेरे को आउटपुट टैक्स पे करना है, यानी कि इसमें मेरे आउटवर्ड सप्लाई भी आया और आरसीएम के ट्रांजेक्शन भी आ गए जिसमें मेरे को टैक्स पे करना है। टेबल 4N के अंदर अगर मैं देखता हूं तो A से लेके M तक का टोटल आ गया, यानी कि टोटल मेरे ट्रांजेक्शन जिनके ऊपर आउटपुट टैक्स बनता है प्लस उनके अमेंडमेंट दैट विल कम इनटू 4N। इसके अलावा मेरे कुछ टर्नओवर ई कॉमर्स ऑपरेटर के हिसाब से जो उसका टर्नओवर नहीं है उसके ऊपर वो टैक्स पे करेंगे G1 के अंदर। तो बेसिकली अगर हम टर्नओवर की बात करें, टैक्सेबल टर्नओवर की बात करें, तो टेबल 4N टोटल टर्नओवर हो गया एज पर टेबल 4। उसमें से हम इनवर्ड सप्लाई टेबल 4G और 4G1 को हटा देंगे तो दैट विल बिकम माय टैक्सेबल टर्नओवर। आई होप आई एम क्लियर कि अगर मेरे को टैक्सेबल टर्नओवर देखना है टेबल 4 का तो 4N विल बी गिवन द टोटल सप्लाई जिसके ऊपर मेरे को टैक्स पे किया है माइनस टेबल 4G एंड 4G1, इन दोनों को हम घटा देंगे तो मेरा टैक्सेबल टर्नओवर निकल के आ जाएगा जिसके ऊपर की मेरे को टैक्स पे करना है। अभी मैं टेबल 10 और 11 पर आऊंगा, अभी उसको हटा दें हम तो टेबल 4 के अंदर टैक्सेबल टर्नओवर की फिगर हो जाएगी टेबल 4N प्लस माइनस 4G माइनस 4G1। आई होप इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि ये रिकंसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम टैक्सेस की कैलकुलेशन करेंगे या 9C के अंदर टैक्सेबल टर्नओवर का कैलकुलेशन करेंगे तो व्हाट वी हैव टू टेक केयर कि हमारा टैक्सेबल टर्नओवर कितना निकल के जा रहा है जो कि 9C के अंदर हमें रिकंसाइल करना है। होप इट इज क्लियर। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस और अदरवाइज आई विल मूविंग फॉरवर्ड। सर एक चीज पूछना था, जैसे हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हो का 2-3 ब्रांचेस, तो सबका अलग अलग 9 जाएगा कि सेपरेट एक जाएगा और सबके लिए अलग अलग? हेलो, हाँ जी सर, अपना क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे एक बार? सर जैसे हमारी 2 ब्रांचेस है
और हाँ एक जी। में टर्नओवर हमारी 2 करोड़ से कम है और एक में ज्यादा है, तो दोनों की हाँ, 9 जाएगी कि एक की जाएगी सिर्फ? या दोनों की जाएगी। मैं अरुण जी का क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल। अरुण जी का क्वेश्चन ये है कि मेरी दो ब्रांच है, एग्जाम्पल के लिए एक दिल्ली में ले लेते हैं और एक मुंबई में ले लेते हैं। दिल्ली का टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए है और लेट्स से मुंबई का टर्नओवर 10 लाख रुपए है। यहाँ पर हमें एलिजिबिलिटी 990 देखने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखना है और एग्रीगेट टर्नओवर में मेरे को पूरे ऑल इंडिया लेवल का टर्नओवर देखना है। तो दैट मीन्स मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा, जो दिल्ली का टर्नओवर है 2.5 करोड़ प्लस 15 लाख रुपए बॉम्बे का, 2.65 लाख विल बी माई एग्रीगेट टर्नओवर। चाहे मैं दिल्ली का रिटर्न फाइल करूं और चाहे बॉम्बे के लिए एलिजिबिलिटी देखूं, माई एग्रीगेट टर्नओवर विल बी 2.6 लाख। यानी कि मेरे को अगर दिल्ली का रिटर्न में फाइल करना हूं तो मेरे को बॉम्बे का भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मीन्स मेरे को दोनों जगह के ही रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। सर होप आई एम क्लियर। और सर जैसे टेबल 4 में हम क्रेडिट नोट नेट करके दिखाएंगे कि आई में दिखाएंगे जो सर टेबल मैं फिर 4 से में एक है? बार टेबल 4 पर आ जाता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। विंडो मेरी विजिबल है? सर विंडो दिख रही है मेरी, टेबल 4 दिख रही है? यस सर। सर देखिए, टेबल 4 के अंदर बड़ा कैटेगरिकली इंस्ट्रक्शन भी वो भी है कि मेरे को अपनी जो टेबल 4, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, ये मेरे को सारे ट्रांजेक्शन्स विदाउट इफेक्ट ऑफ क्रेडिट नोट दिखाने हैं कि विदाउट क्रेडिट नोट के मेरे B2B सप्लाई कितनी है, B2C सप्लाई कितनी है। उसके अलावा जब मेरे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है, उनकी इंफॉर्मेशन आई और जे में जाएगी और 4N के अंदर आई और जे की कैलकुलेशन अपने आप उसमें से रिड्यूस होके अपने आप यहाँ पर लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो दैट मीन्स क्रेडिट नोट का जो इम्पैक्ट है वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। होप सर आई एम क्लियर। यस सर। सर किसी और का कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग, या हम वी शुड मूव फॉरवर्ड? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे टेबल 4 के अंदर मेरे आउटपुट टैक्स की डिटेल आई, टेबल 5 के अंदर मेरी नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या मेरे आउटवर्ड सप्लाई है जिसमें कि सामने वाले को आरसीएम पे करना है, या मेरी ये सेक्शन 95 होगा जो मैंने 5 लिखा, 95 में मेरी जो मेरी सप्लाई है या एग्जम्प्टेड सप्लाई है और इनके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो बेसिकली व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस, जिन जिन ट्रांजेक्शन के ऊपर मेरी टैक्सेस पे होने हैं, जीएसटी पे होना है, दैट विल गो टू बेसिकली टेबल 4, और जिन जिन मेरी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर टैक्स पे नहीं होना वो टेबल 5 के अंदर जाएंगे। तो पहला बेसिक डिफरेंस टेबल 4 और 5 के अंदर क्या हो गया, टेबल 4 के अंदर वो सप्लाई जा रही है जिसमें कि मेरे आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी बनती है। उसमें दो ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो मेरे आउटवर्ड सप्लाई नहीं है लेकिन टेबल 4 में डिक्लेयर होंगे। पहला, मैं ऐसी कोई इनवर्ड सप्लाई ले रहा हूं जिसमें मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट की लायबिलिटी है, तो मैं उसको टेबल 4G में दिखाऊंगा। मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं और मेरे कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें सेक्शन 95 में टैक्स पे करने की लायबिलिटी मेरी है, तो मेरा टर्नओवर ना होते हुए भी मैं 4G1 में उसको दिखाऊंगा। जबकि टेबल 5 के अंदर मैं सारे उन ट्रांजेक्शन्स को दिखाऊंगा जो मेरे आउटवर्ड सप्लाई हैं लेकिन जिसके ऊपर मेरे को जीएसटी पे करने की लायबिलिटी नहीं है। तो आई होप आई एम क्लियर। टेबल 4 के अंदर मेरे सारे टर्नओवर आ गए, प्लस आरसीएम के इनवर्ड टर्नओवर आ गया, प्लस ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए मेरा ई कॉमर्स ऑपरेटर का टर्नओवर सेक्शन 95 के जो रिलेटेड है वो आ गया, और 5 के अंदर मेरे सारे वो टर्नओवर आ गए जिसमें कि मेरे को टैक्स पे नहीं करना। तो आई होप आई एम क्लियर कि अगर मैं टेबल 4 और 5 को अगर समअप करूंगा तो मेरा टोटल टर्नओवर आ जाएगा, लेकिन उस टोटल टर्नओवर में मेरे दो ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो कि मेरे आउटवर्ड टर्नओवर, मेरा टैक्सेबल टर्नओवर या टर्नओवर है ही नहीं मेरा, वो है इनवर्ड सप्लाई सब्जेक्ट टू आरसीएम एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए सेक्शन 95। वो जब भी हम टर्नओवर की कैलकुलेशन करेंगे उन दोनों ट्रांजेक्शन को हम हटा देंगे। तो बेसिकली ये टेबल 5 का, जैसे टेबल 4 थी सिमिलर वे में टेबल 5 मेरी आ जाएगी, और मेरा जो टोटल टर्नओवर है वो बेसिकली मेरा 5N के अंदर देखा जाता है। टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एडवांसेस इज 4N प्लस 5M माइनस 4G माइनस 4G1।
दैट मीन्स अगर मैं ग्रॉस टर्नओवर की बात करूं, क्योंकि 9C में मैं 2 टर्नओवर की बात करता हूं, ग्रॉस टर्नओवर का रिकंसिलेशन एंड टैक्सेबल टर्नओवर का रिकंसिलेशन। सबसे पहला रिकंसिलेशन मैं ग्रॉस टर्नओवर का करता हूं, तो ग्रॉस टर्नओवर के रिकंसिलेशन के लिए द रिलेवेंट फिगर विल बी कमिंग फ्रॉम 5N। वो मेरा ग्रॉस टर्नओवर दिखाएगा जो कि इक्विवेलेंट है 4N प्लस 5M माइनस 4G माइनस 4G1। 4N जो मेरा टैक्सेबल टर्नओवर की टेबल्स का टोटल था, 5M मेरा जो टोटल टेबल 5 का टोटल है, 4G मेरा जो इनवर्ड सप्लाई है सब्जेक्ट टू RCM, 4G1 है फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है तो 4G1 में डाटा नहीं जाएगा। ये ध्यान रखें, 4G1 की चिंता हमें तभी करने की जरूरत है अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं और मैं एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 95 में टैक्स पे कर रहा हूं। अगर मैं मैक्सिमम केसेस में अगर मैं बात करूं तो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं ही नहीं, तो मेरे को 4G1 के डाटा को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आता है टेबल 10 एंड 11। टेबल 10 एंड 11 बिकम्स वेरी रिलेवेंट। क्यों? वो इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि हमने जब डिस्कस किया कि मेरा जो डाटा है 24-25 का, वो जरूरी नहीं है कि मैं मार्च का जो GSTR 3B फाइल कर रहा हूं उसमें सारा डाटा चला गया। मेरे पास विंडो अवेलेबल है कि मैं अक्टूबर 25 तक के रिटर्न जो मेरे GSTR 1 या GSTR 3B जा रहे हैं उसमें मैं नए डाटा को डिक्लेयर कर सकता हूं, या फिर मैं जो डाटा कुछ मेरा छूट गया था उस डाटा को मैं वहां डिक्लेयर कर सकता हूं। तो टेबल 10 और 11 इसी पर्पज से है। अगर मेरी कोई डेबिट नोट के थ्रू या कोई अमेंडमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी जिससे मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, तो वो मैं टेबल 10 में दिखाऊंगा। और या कोई क्रेडिट नोट है या फिर जो अमेंडमेंट है जिससे मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो मैं उसको टेबल 11 में दिखाऊंगा। टेबल 10 और 11 बिकम्स क्रूशियल फॉर द नेक्स्ट ईयर रिटर्न ऑल्सो, क्योंकि ये दो टेबल दिखा रही हैं कि आपने 25-26 के रिटर्न में 24-25 के कितने डाटा को शो किया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो अगर मैं टेबल 5 और टेबल 10 और 11 को कंपाइल कर दूं तो मेरा टोटल टर्नओवर उससे निकल के आ जाएगा। दैट मींस अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था 5N जो है मेरा, 5N विल शो my total turnover. This will be sum of table 4 plus table 5 minus inward supply minus 9-5। मैं भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर का डिस्कस नहीं करता, लेट अज्यूमिंग कि आई एम नॉट ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो सिंपल वे में जहां ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है तो मैं टेबल 4 का सम लूंगा, टेबल 5 का सम लूंगा, एंड आई विल रिड्यूस आउट ऑफ दैट माय इनवर्ड सप्लाई। तो उससे मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो मेरा ट्रांजेक्शन, उससे जो बेसिकली माय ट्रांजैक्शन विल बिकम द टोटल टैक्सेबल टर्नओवर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। 10 और 11 के अंदर हमने जो 24-25 का डाटा है और 25-26 में शो किया है अपने रिटर्न्स के अंदर, दैट विल गो इनटू टेबल 10 एंड टेबल 11। बेसिकली 9C के अंदर टेबल 5 में ग्रॉस टर्नओवर का रिकंसिलेशन हो जाएगा। टेबल 6 के अंदर डिफरेंसेस हैं हम उसको बता देंगे। रिकंसिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर टेबल 7 के अंदर चला जाएगा। बेसिकली जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर आता है वो चैलेंज आता है, देखिए मेरा जो GST का टर्नओवर है टैक्सेबल टर्नओवर, वो तो टेबल 4 से मेरा निकल के आ गया प्लस 10 माइनस 11, तो उससे मेरा टैक्सेबल टर्नओवर निकल के आ गया। लेकिन जो चैलेंज आता है वो चैलेंज आता है बुक्स के हिसाब से मैं चैलेंज कैसे निकालूं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को GSTR 9 हर स्टेट का फाइल अलग करना है और मेरे को जो टर्नओवर निकालना है वो हर स्टेट का अलग से लेना है। तो दैट मीन्स पहला काम मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने बुक्स के टर्नओवर को मेरे को स्टेट वाइज बाइफरकेट करना पड़ेगा ताकि मैं टोटलिटी में उसको मैच कर सकूं। देन उसके हर स्टेट के टर्नओवर को आई विल बी टेकिंग टू माय GSTR 9C, एंड पहले मैं ग्रॉस टर्नओवर टेबल 5 के अंदर रिकंसाइल करूंगा। ग्रॉस टर्नओवर मतलब मैं जो टेबल 5 का टर्नओवर था प्लस टेबल 4 का टर्नओवर था, उसमें से जो मैं इनवर्ड सप्लाई घटा दूंगा, उसके टर्नओवर को मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से टर्नओवर से रिकंसाइल करूंगा। इसमें बेसिकली डिफरेंस किस वजह से आएगा, इसमें डिफरेंस बेसिकली आएगा मेरे अकाउंटिंग पॉलिसीज के कारण, जो हैं जो मेरे कोई ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने GSTR 9C में नहीं दिखाई है, लेकिन मेरे वो बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रही हैं। एक बहुत लाइव एग्जाम्पल है इसका, दो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं।
पहला तो अनबिल्ड रेवेन्यू हो गया, यानी कि मैं अपनी बुक्स के अंदर प्रोविजन कर रहा हूं 31 मार्च को एज पर माई अकाउंटिंग पॉलिसी, एज पर इंड AS, लेकिन मैं क्योंकि उसकी सप्लाई कंप्लीट नहीं हुई है, टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन के हिसाब से अभी इन्वॉइसिंग इशू नहीं हुई है, तो वो रेवेन्यू मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा होगा, लेकिन मेरे GST रिटर्न में नहीं आ रहा होगा। तो वो डिफरेंस आएगा ही आएगा, एंड दैट विल गो इनटू माय बेसिकली रिकंसिलेशन इन 9C, फॉरेन एक्सचेंज के टर्नओवर का डिफरेंस। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट डिफरेंस आता है वो आता है रिम्बर्समेंट का। अगर मेरे कोई रिम्बर्समेंट है एज ए प्योर एजेंट, मान लीजिए मैंने किसी फॉर एग्जांपल एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी फॉर्म करी किसी के लिए, उसमें मैंने कंपनी की जो फीस थी वो अपने पास से पे करी, उसका रिम्बर्समेंट लिया। मैंने जो इनवॉइस क्लाइंट को दी, लेट्स से 1 लाख रुपए की मेरी प्रोफेशनल फी, 50,000 रुपए के बेसिकली रिम्बर्समेंट जो कि प्योर एजेंट की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तो मैंने क्लाइंट को 1.5 लाख रुपए का बिल दे दिया, और उस 1.5 लाख रुपए के बिल को क्लाइंट ने मेरे को पे कर दिया। मैंने 1 लाख रुपए के ऊपर GST पे कर दिया। दैट मीन्स मेरे 1.5 लाख रुपए के बिल में से 1 लाख रुपए मेरे GSTR 1 में जाएगा, और 3 में जाएगा, 3 में जाएगा, और 1 लाख रुपए के ऊपर मैं GST पे करूंगा, क्योंकि 50,000 रुपए के ऊपर मेरी GST की लायबिलिटी नहीं बनती है, बिकॉज आई एम एक्टिंग एज ए प्योर एजेंट, और मैं उसको रिम्बर्समेंट क्लेम कर रहा हूं। मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी मेरी ऐसी है कि मैं 1.5 लाख रुपए को पहले इनकम दिखाता हूं, यानी कि 50,000 रुपए क्योंकि मेरे पास आए हैं, फॉर मैचिंग परस्पेक्टिव व्हाट आई डू कि मैं 1.5 लाख रुपए को अपनी इनकम दिखाता हूं और 50,000 रुपए को एक्सपेंस दिखाता हूं। यानी कि अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जब टर्नओवर लूंगा, तो वो जो टर्नओवर है वो आएगा 1.5 लाख रुपए का, लेकिन मेरे जो GSTR के रिटर्न्स हैं, मैं किसी भी तरह से कंपाइल कर लूं, वो 1 लाख रुपए का आएगा। दैट मीन्स 50,000 रुपए का डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो वो 50,000 रुपए का रिकंसिलेशन मेरे को यहाँ पर अदर्स में दिखा के आई हैव टू शो कि 50,000 आर द रिम्बर्समेंट। और स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो फ्रेट फॉरवर्ड इंडस्ट्री के अंदर ये एक मोटा डिफरेंस होता है। जो रिम्बर्समेंट है वो इनकम का एक मेजर पोर्शन होता है, दैट गो इनटू द फाइनेंशियल्स, वो मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम में शो करता हूं, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्योर एजेंट कंडीशंस दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ माय GST रिटर्न्स। तो वो जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि कहाँ शो किया जाए। उस डिफरेंस को हमें टेबल 5 में अंदर दिखाना चाहिए, और उसके डिफरेंस का एक रिकंसिलेशन और या एक नोट हम अलग से साथ में लगा सकते हैं, एंड सो दैट कल की रेट में जब डिपार्टमेंट इसका एनालिसिस करेगा तो डिफरेंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। उसके कारण प्राइमा फेसी द नोटिस शुड नॉट कम कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टर्नओवर तो आपने इतना ज्यादा दिखाया हुआ है, 50 करोड़ दिखाया है, लेकिन आपने GST पे किया है सिर्फ लेट से 5 करोड़ या 10 करोड़ पर। सो बेसिकली 5 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर द ट्रांजेक्शंस, उन ट्रांजेक्शंस के लिए जो कि मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से तो इनकम है, लेकिन जो कहीं ना कहीं मैंने अपने उनको ना तो मेरी टैक्सेबल सप्लाई है ना मेरी एग्जम्प्टेड सप्लाई है, मैंने अपने के रिटर्न में उनको शो ही नहीं किया है, तो वो सारे ट्रांजेक्शंस मैं 5 के अंदर दिखाऊंगा। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव टेबल 5 बिकम्स वेरी क्रिटिकल कि मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या दिखाया है, अपने रिटर्न्स में क्या दिखाया है, व्हाट इज माय फंडामेंटल डिफरेंस बिकॉज ऑफ माय अकाउंटिंग पॉलिसीज, दैट ऑल शुड कम इनटू टेबल 5, दैट वी हैव टू टेक केयर। मैं जस्ट एक बार समराइज कर दे रहा हूं। टेबल 5 के अंदर पहला डाटा आएगा GSTR 9 से उठ के, टेबल 5 का टोटल प्लस टेबल 4 का टोटल माइनस 4G, वो रिकंसिलेशन में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो टर्नओवर है, व्हाट वी हैव टू टेक केयर कि जो मेरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो टर्नओवर है दैट हैज टू बी टेकन हेयर। अगर मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनी है तो बेटर है कि मैं ब्रांच वाइज GST वाइज टर्नओवर को रिकंसल करके यहाँ पर अटैचमेंट के साथ लगा दूं, क्योंकि मैं बैलेंस शीट को कंप्लीट लगाऊंगा। देखिए व्हाट इज द चैलेंज कि लेट्स से मेरी 2 ब्रांच हैं, दिल्ली में है और लेट्स से वेस्ट बंगाल में मेरी एक ब्रांच है। दिल्ली का टर्नओवर मेरा बुक्स के अंदर 5 करोड़ है, बॉम्बे का टर्नओवर मेरा 15 करोड़ है, टोटल मिला के मेरा 15 करोड़ का टर्नओवर हो गया। मेरे जो फाइनेंशियल्स बने होंगे 15 करोड़ के बने होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर 5 करोड़ का ही टर्नओवर लूंगा, तो डिपार्टमेंट को विदाउट आपसे पूछे हुए कैसे पता चलेगा कि 15 करोड़ में से 5 करोड़ ये का है और 10 करोड़ वहां का है। तो व्हाट वी शुड डू कि टर्नओवर के रिकंसिलेशन को वी कैन अटैच एज एन अटैचमेंट कि मेरा टोटल फाइनेंशियल्स के टर्नओवर के हिसाब से जो ब्रांचेस का रिकंसिलेशन है टर्नओवर का, वी कैन पुट इट हियर एज ए नोट फॉर द पर्पज ऑफ कि मेरा टोटल टर्नओवर से मेरा ये मैच टेबल 5 कर रही है। तो टेबल 5
बिकम्स इम्पोर्टेंट कि मैं जो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो टर्नओवर है उसको मैं रिकंसाइल कर सकूं अपने जीएसटी के टर्नओवर से, जो मैंने अपने जीएसटीआर 9 में कंपाइल किया है पूरे साल भर की इंफॉर्मेशन को। उसके बाद में क्योंकि टेबल 5 के अंदर मेरा टोटल टर्नओवर है, यानी कि उसके अंदर एग्जम्प्टेड टर्नओवर भी है, मेरा बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाई जो विदाउट टैक्स है वो भी है, तो दैट इज अ ग्रॉस टर्नओवर। टेबल नेक्स्ट टेबल के अंदर मैं जो है बेसिकली टेबल 7 के अंदर मैं टैक्सेबल टर्नओवर का रिकंसिलेशन करूंगा, और कोई डिफरेंस है तो आई हैव टू बी हियर। बेसिकली टैक्सेबल टर्नओवर का डिफरेंस आना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अकाउंटिंग पॉलिसी की जो डिफरेंस है all will be coming into basically table 5। टेबल 7 में टेक्निकली कोई भी टर्नओवर का डिफरेंस बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं आता। तो अगर मैं टैक्सेबल टर्नओवर की बात करूं तो प्राइमा फेसी, अनलेस अनटिल कोई स्पेसिफिक रीजन हो, प्राइमा फेसी मेरे टैक्सेबल टर्नओवर एज पर माय जीएसटी 9 जो मैं डिराइव करूंगा, और जो मैं एडजस्टेड टर्नओवर अपने टेबल 5 से कैलकुलेट करूंगा, दोनों के बीच में डिफरेंस आना नहीं चाहिए। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि देखिए हर चीज का जीएसटी के अंदर बेसिकली एवरीथिंग इज लिंक्ड विद सम डॉक्यूमेंट। मैं अगर आउटवर्ड सप्लाई की बात करूं, या तो वो टैक्स इनवॉइस ई इनवॉइस पर बेस्ड होगी, डेबिट नोट होंगे या क्रेडिट नोट, ई क्रेडिट नोट होंगे, डेबिट नोट होंगे, क्रेडिट नोट होंगे, ई बिल होगा। तो एंड ये हमने डॉक्यूमेंट्स कितने जनरेट किए हैं, हर बार हम हर महीने अपने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर कर रहे हैं। तो व्हाट वी हैव टू मेक एंश्योर व्हेन वी आर कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन फॉर GSTR 1 sorry GSTR 9 फॉर आउटपुट टैक्स एंड आउटवर्ड सप्लाई, हमें टोटल टर्नओवर का रिकंसिलेशन, टोटल टैक्सेबल टर्नओवर का रिकंसिलेशन, जो टैक्सेस पेड हैं उसका रिकंसिलेशन, ऑल वी आर डूइंग एंड वी हैव टू डू। 4 में टैक्सेबल चला गया, 5 में नॉन टैक्सेबल पोर्शन चला गया, 4 और 5 मिला के मैं 9 से मैच कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ डे दैट हैज टू बी वर्फिकेटेड इनटू इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। ये मेरा कंपाइलेशन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के लेवल तक जाना चाहिए कि मैं टैक्सेबल टर्नओवर जो कह रहा हूं उसकी टोटल इनवॉइसेस कितनी हैं, वो चाहे मैंने 24-25 में दिखाई हैं या 25-26 में दिखाई हैं। तो दैट वी हैव टू टेक केयर कि ये सारे कंपाइलेशन हो। और आज की डेट में तो ई बिल के कारण जो डिफरेंस है उसके कारण जो रिकंसिलेशन है डिपार्टमेंट इज गिविंग नोटिस, तो बेटर ये है कि अगर ई बिल के साथ हम उस रिकंसिलेशन को अपने लेवल पर कर सकें तो वी कैन अवॉइड नोटिस, और नोटिस आए एंड वी नो व्हाई द डिफरेंसेस, तो वो हम एक उस चीज का रिप्लाई दे सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि मेरे आउटवर्ड सप्लाई और आउटपुट टैक्स को हम कैसे दिखा रहे हैं और कैसे चीजों को दिखाएंगे। अगर आउटपुट सप्लाई या आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस, और अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। तो सर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने माइक को ऑन करके यू कैन आस्क। चैट बॉक्स में मैं सर बाद में देख के लास्ट में देख के डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई और आउटपुट टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो दैट वी कैन डिस्कस राइट नाउ। अगर किसी का क्वेश्चन है तो अपने को अनम्यूट करके यू कैन आस्क और यू कैन डिस्कस, और अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। सर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई विल मूविंग फॉरवर्ड। अब आते हैं हम इनपुट टैक्स रेट पर। तो कि सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है और जो सबसे ज्यादा टाइम है और या सबसे ज्यादा नोटिस हैं वो इनपुट टैक्स रेट से ही आते हैं, और उसमें हमने कब दिखाया है कब आया है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आउटपुट टैक्स के अंदर और आउटवर्ड सप्लाई के अंदर तो हमारे दो ही डॉक्यूमेंट है, GSTR 1 और GSTR 3B।
चाहे 24-25 का हो या 25-26 का हो, बट दीज आर द ओनली 2 डॉक्यूमेंट। आईटीसी के अंदर चैलेंज खड़ा हो जाता है कि एक नया डॉक्यूमेंट और नया रिटर्न आ जाता है GSTR 2B, और वो बेस्ड है जो मेरे वेंडर्स ने रिटर्न फाइल किए हैं उसके ऊपर। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज आ जाता है कि मेरे को अपनी GSTR 3B का भी रिकंसिलेशन करना है, जो मैं इनपुट टैक्स रेट ले रहा हूँ, और मेरे 2B में क्या अपेयर हो रहा है उसका भी रिकंसिलेशन करना है। तो अगर हम GSTR 9 के अंदर इंफॉर्मेशन देखेंगे, टेबल्स को देखेंगे, तो टेबल 6 जो है वो मेरे 3B के बेसिस पर जो मैं इनपुट टैक्स रेट क्लेम कर रहा हूँ उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, और 8 के अंदर मेरे जो 2B का जो डाटा है आईटीसी का, वो रिकंसाइल वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो 6 के अंदर जो टेबल के अंदर डाटा क्लेम किया, इनपुट टैक्स रेट क्लेम किया, उसके साथ रिकंसिलेशन, और 7 के अंदर टेबल रिवर्सल्स है। तो मैं ब्रॉडली बोलूं तो GSTR 9 के अंदर मेरी 3 टेबल हैं। 3 टेबल में पहली टेबल हो गई पहली टेबल हो गई मेरी GSTR 9 के अंदर टेबल 6, जिसमें कि मेरा जो मैंने GSTR 3B फाइल किए हैं उसके बेसिस पर जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इन्फॉर्मेशन आ गई। 7 के अंदर मेरे जो उसके रिवर्सल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन आ गई, और टेबल 8 में मेरा जो 2B में जो डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है उस डाटा का रिकंसिलेशन है विज जो मैंने 3B में अपना आईटीसी क्लेम किया है। तो बेसिकली ये 3 टेबल मेरी इसके अंदर है, और सबसे ज्यादा चैलेंज आता है वो टेबल 8 के अंदर आता है, लेकिन हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं टेबल 6 के अंदर। देखिए टेबल 6 के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि जो मैंने 24-25 के अंदर GSTR 3B फाइल किए हैं वो मैंने फाइल करते समय 23-24 के डाटा को भी क्लेम किया उसके अंदर, यानी कि जो 24-25 के डाटा गए हैं वो 24-25 के 3B के जो रिटर्न्स हैं उसके अंदर 23-24 का भी डाटा है। टेबल 6 के लिए रिलेवेंट है, अभी हम इतना ही लेके चलते हैं बस। टेबल 6 का जो बेसिस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जब हम उन टेबल्स पर जाते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। मैं फिर से फंडामेंटली एक चीज डिस्कस कर रहा हूं कि टेबल 6 के अंदर जो इंफॉर्मेशन हम फाइल कर रहे हैं वो हमने जो GSTR 3B फाइल किए हैं 24-25 के, उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन है। 25-26 की जो रिटर्न्स फाइल हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन टेबल 6 में नहीं जा रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, GSTR 6 के अंदर हमने जो GSTR 3B फाइल किए हैं 24-25 की, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को हम कंपाइल कर रहे हैं। जो हमने इंफॉर्मेशन 25-26 में फाइल करी है 24-25 की, दैट इज नॉट कमिंग इनटू टेबल 6। दैट इज अ फंडामेंटल थिंग व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। वो टेबल नंबर 13 और 14 में चला जाएगा और टेबल 8 के अंदर रिकंसिलेशन का पार्ट बन जाएगा। मैं रिपीट करने के लिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि व्हेन वी डू द रिकंसिलेशन मैथमेटिकली इतना हम उलझ जाते हैं कि कई बार वो समझ में नहीं आता कहां से हम क्या कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करने के लिए रिपीट कर रहा हूं, टेबल 6 मेरे GSTR 3B पर बेस्ड है, नंबर 1। वो GSTR 3B जो मैंने 24-25 में फाइल किए हैं, जो मैंने 24-25 में फाइल किए हैं उसके अंदर 2 साल का डाटा है, 23-24 का और 24-25 का। तो मेरा सबसे पहला काम यही होना है कि मैंने जो 24-25 के रिटर्न्स को फाइल किया है 3B के, उसमें कितना 24-25 का इनपुट टैक्स क्रेडिट है और कितना 23-24 का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मैं उसको अलग अलग कर लूं। उसको अलग अलग करने के साथ साथ जो मैंने पिछले साल टेबल नंबर 12 और 13 में जो इंफॉर्मेशन फाइल करी थी, मैं ये देख लूं कि 23-24 का डाटा उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं डाटा आपस में इंटरलिंक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं अपने ITC 24-25 को जो मैंने GSTR 3B में फाइल किया है, उस ITC 24-25 को जो 24-25 के GSTR 3B हैं उसको मैं 2 स्टेप करूंगा। पहला स्टेप, मैंने जो GSTR 3B अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक फाइल किए हैं, उस GSTR 3B में मेरा 23-24 के लिए कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मैं इसको अलग कर लूंगा, एंड आई विल रिकंसाइल ऑल्सो इट विद जो लास्ट ईयर का मैंने एनुअल रिटर्न फाइल किया था उससे टेबल नंबर 12 और 13 से। दैट इज द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू। अब इस साल एक अच्छा चेंज आया है, वो है टेबल 6A1।
देखिए बेसिकली मैं इसके फॉर्म पर आता हूं पहले ताकि क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए टेबल 6 है, अभी आप कुछ आगे मोड़ मत देखिए। सबसे पहला कॉलम जो है 6A के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड इन GSTR 3B सम टोटल ऑफ द 4A। यानी कि अब GSTR 3B के अंदर हम क्या क्या लेते हैं, आई थिंक वो मिस हो गए, कोई बात नहीं हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। कोई तो बेसिकली अगर हम बात करें टेबल 6A के अंदर मेरा GSTR 3B का 4A का सम आता है, और मैं एक बार इसको खोल के आपको दिखा देता हूं। GSTR 3B फॉर रेफरेंस पर्पज दो ऑल नोस। सर सबको GSTR 3B नजर आ रहा है? सर मैं एक बार अपना कैमरा ऑफ करके ही करता हूं आगे। सबको सर वो नजर आ रहा है GSTR 3B? यस सर। ओके, बेसिकली GSTR 3B के अंदर टेबल 4A के अंदर ये देखिए 4A के अंदर 5 कॉलम में हम डाटा फाइल करते हैं। पहला इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम RSD एंड उसके अलावा जितना ITC है। यानी कि टेबल 4A के अंदर बिफोर रिवर्सल जितना क्रेडिट है वो पूरा का पूरा चला जाता है। दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि टेबल 4A के अंदर मैं टोटल अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को दिखाता हूं और 4B के अंदर रिवर्सल करता हूं। अब मैं फिर से टेबल अपना 6A के अंदर आता हूं। या सर टेबल 6A विजिबल है? सर टेबल 6A विजिबल है? देखिए टेबल 6A के अंदर जो बार बार इंफॉर्मेशन जो 6A के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, दोबारा चिपका दें, जो 6A के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन है टेबल 4A से। यानी कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि ग्रॉस लेवल पर है विदाउट रिवर्सल है। जो मैंने GSTR 3B फाइल किए हैं 24-25 में, टोटल इंफॉर्मेशन उसकी 6A के अंदर चली जाएगी। उसमें से 6A1 जो इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि मेरा ITC 23-24 का है, अदर देन रिक्लेम, वो मेरा यहां पर आ जाएगा। सर एनीबडी कैन डिस्कस कि यहां पर रिक्लेम क्यों नहीं आएगा? रिक्लेम 37, 38 A का बेसिकली, बाकी सारे रिक्लेम आएंगे। हम रिक्लेम 37, 37A में ही करते हैं। तो A1 के अंदर मैं 23-24 का सारा डाटा दिखाऊंगा, लेकिन 23-24 का कुछ रिक्लेम है तो वो नहीं आएगा। मैं एग्जांपल बता देता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल एक कोई इनवॉइस है जो कि 23-24 की है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसको लेट्स उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट 23-24 का जो मैंने जून 2025 में क्लेम किया, तो मैं उसको 6A1 में नहीं दिखाऊंगा, दिखा दूंगा, सॉरी उसको रिवर्स कर दूंगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा 23-24 का डाटा है जो मैंने रिवर्स किया था 23-24 में बिकॉज ऑफ द रूल 37 और 38A, और उसको मैंने रिक्लेम कर लिया 24-25 में लैंड से जून 25 में। तो जो जून 25 में मैंने रिक्लेम किया उसको मैं टेबल A1 में नहीं दिखाऊंगा। उसको क्यों नहीं दिखाऊंगा सर? एनीबडी कैन डिस्कस दैट थिंग? या प्लीज अपना माइक ऑन करके एनीबडी कैन शेयर, क्योंकि सर ये हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीजों का, और ये इसका एक बहुत फंडामेंटल रीजन है कि वो क्यों नहीं आएगा। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सर क्वेश्चन मेरा ये है
कि टेबल 6A1 के अंदर मैं जो 24-25 में मैंने 23-24 का जो इनपुट टैक्स रेट क्लेम किया है उसको मैं रिवर्स करता हूँ, 6A1 के अंदर मैं उसको दिखाता हूँ। यस सर। मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल में 2 केस लेके चलते हैं। मेरा एक 23-24 का एक 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स रेट था जो मैंने जून 25 में क्लेम किया, यानी कि दैट वाज ऑफ 23-24 बट आई क्लेम्ड इट इन 24-25। दूसरी इनवॉइस थी लेट्स से मार्च 25 की 50,000 रुपए की, 50,000 रुपीज की, जो मैंने मार्च 25 में उसको रिवर्स कर दिया बिकॉज ऑफ रूल 37। पुरानी इनवॉइस थी, लेट्स से 180 दिन निकल गए थे, तो मार्च 25 में मैंने उसको रिवर्स कर दिया। यस सर। उसको रिक्लेम किया 24-25 में। या तो 6A1 के अंदर मैं जो रिक्लेम की फिगर है उसको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो जून की जो दूसरी इनवॉइस है 1 लाख रुपए की उसको मैं 6A1 में दिखाऊंगा टू गेट द माय नेट क्रेडिट। मैं अपने रिक्लेम वाली अमाउंट को नहीं दिखाऊंगा। sir, the fundamental reason is with the latest amendment, this entire 9 is pertaining only to 24-25 and not nothing of the previous years should be appearing in here. सर बेसिकली देखिए एक आंसर आया है, दैट इज परफेक्ट आंसर। reclaimed under 3730 is the ITC of the year in which is reclaimed। एक फंडामेंटल डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। जीएसटी के अंदर डॉक्यूमेंट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं Yes. 24-25 का ट्रांजेक्शन है या नहीं है, मैं किस बेसिस पर कहता हूँ? मैं डॉक्यूमेंट की डेट पर कहता हूँ। अगर 24-25 का कोई मेरा आउटवर्ड सप्लाई की इनवॉइस है डेट की और मैं 25-26 में उसको फाइल करता हूँ, तो मैं यही कहूंगा कि वो 24-25 की है। जीएसटी के अंदर प्राइमा फेसी इन मैक्सिमम केसेस और से 100% केसेस एक्सेप्ट फ्यू, मेरी डॉक्यूमेंटेशन डेट, डॉक्यूमेंट की डेट डिसाइड करती है कि वो किस साल का ट्रांजैक्शन है। अगर मेरी इनवॉइस डेट 23-24 की है और मैं 24-25 में क्लेम कर रहा हूं, तो वो 23-24 का ही आईटीसी कहलाएगा और 6A1 के अंदर उसको हमें दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं आईटीसी को 37-38 के अंदर रिक्लेम करता हूं, तो दैट बिकम द आईटीसी ऑफ द ईयर इन विच इट इज रिक्लेम्ड। जो आंसर भी चैट बॉक्स में आया है, नाम नहीं आ रहा है, सैमसंग लिखा हुआ है। सर नाम भी बता देंगे अपना? सैमसंग SM A166P। Sir, my name is Savita Sahu. थैंक यू कविता जी। तो जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि 37-38 के अंदर जो मैं रिक्लेम करता हूँ क्रेडिट को, ये क्रेडिट उस साल का बनता है जिस साल में रिक्लेम कर रहा हूँ। तो अगर मैंने 24-25 में किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिक्लेम किया है, पिछले साल का क्रेडिट था और 24-25 में रिक्लेम किया है, तो वो जो क्रेडिट है वो 24-25 का ही बन जाएगा और मेरे को उसको A1 के अंदर रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होप आई एम क्लियर? Sir, we should move forward. Yeah. Yes. Okay, sir. सर एक चीज, जो आईटीसी लैप्स हो जाते हैं, जैसे हम टाइम ही निकल गया, उनका ड्यू डेट खत्म हो गई है लेने की, तो उसे किस टेबल में शो करेंगे जो खत्म हो? ये हमारे बुक्स में तो नजर आता है, बट एक चीज बड़ा समझिए कि उसको कहाँ शो करेंगे, अभी मैं आ जाऊंगा उस चीज के लिए। लेकिन वन थिंग इज फंडामेंटली क्लियर कि 9 के थ्रू मेरे को क्रेडिट एक्स्ट्रा कोई नहीं मिलेगा, दैट वी हैव मेक श्योर। मैं 9 के थ्रू टैक्स तो पे कर सकता हूँ, कि बेसिकली 9 के थ्रू टैक्स पे करने का मतलब ये है कि अगर कोई लायबिलिटी मेरी बनती है तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा और मैं टैक्स पे कर दूंगा उसका। उसको सर मैं जब टेबल 8 अभी डिस्कस करते हैं, देन वी विल डिस्कसिंग दैट। अभी हम टेबल 6 पर रह लेते हैं, फिर उसके बाद में जब टेबल 8 आएगी तो आपका क्वेश्चन मैं एड्रेस कर दूंगा। तो बेसिकली टेबल 6 एंड A1 इज वेरी क्लियर, क्योंकि देखिए अगर ये डाटा मेरे को समझ में आ रहा है और इससे हम आगे जाएंगे तो हमें डाटा को कहीं भी और कैसे भी दिखाना हो चैलेंज नहीं आएगा। तो टेबल 6A में मेरा GSTR 3B का ग्रॉस लेवल पर आईटीसी आ गया। A1 में मैं जो 23-24 का आईटीसी है उससे रिड्यूस कर दिया, तो 6A2 will give the ITC of 24-25 declared in GSTR 3B of 24-25। यानी कि मेरा A2 की जो फिगर है
जो GSTR 3B मैंने 24-25 में फाइल करी हैं और उसमें 24-25 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन माय 6A2. आई होप आई एम क्लियर. अब उस A2 को जो मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट है मैं डिफरेंट कैटेगरीज में बांटूंगा. इनवर्ड सप्लाई जिसमें मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे करूंगा, इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इसमें एसईजी से सप्लाई आ जाएंगी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड रिक्लेम्ड ITC 01, 02 और 2A के क्रेडिट. तो बेसिकली ऑल दिस जो 6A2 का जो बाइफिकेशन है मैं उसको बाइफिकेट कर दूंगा कि इनवर्ड सप्लाई इंपोर्ट कितने हैं, गुड्स के कितने हैं, सर्विसेज के कितने हैं, दूसरा इनवर्ड सप्लाई कितना है, उनमें से इनपुट कैपिटल गुड और इनपुट सर्विसेज का कितना है. तो ये बाइफिकेशन विल गो इनटू माय टेबल 6B2 लेके 6O तक, 6M तक. और उस ITC के अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो आई हैव टू एक्सप्लेन. और फ्रैंकली स्पीकिंग जो मैंने अपने GSTR 3B में क्लेम किया है और उसकी जो मैं डिटेल दे रहा हूँ उसके अंदर कोई डिटेल कोई उसके अंदर बेसिकली डिफरेंस होना नहीं चाहिए. अब एक 6H कॉलम है अमाउंट ऑफ रिक्लेम्ड. जो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट 24-25 में रिक्लेम किया है उसकी एक सेपरेट इंफॉर्मेशन 6H के अंदर चली जाएगी और एक डिस्क्लोजर यहाँ पर आ जाएगा और तभी हम टेबल 8 पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर वो ITC में सारा इंक्लूड है तो वो रिफ्लेक्ट अलग से 6H को टेबल 8 के साथ डीलिंक कर दिया है कि वहां पर हमें लेने की जरूरत नहीं है. आई होप टेबल 6 इज क्लियर. फंडामेंटली GSTR 3B में 24-25 का डाटा 24-25 के GSTR 3B में डाटा है उसका बाइफिकेशन हैज टू गो इनटू टेबल 6. हेलो. जो 24-25 का जो GSTR जो डाटा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमने अगले साल अगर एक्स्ट्रा लिया है या अगले साल क्लेम किया है तो दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग इन बेसिकली टेबल 12 and 13. Hello sir, one question. Yeah sir. Sir, for example, the figures in 8C of GSTR 9 for financial year 23-24. अभी हम टेबल 8 पर आ जाए, then you discuss that question. No, sir, it should be the same figure which will be reflected in 6A1 of table numbers. अभी मैं एक काम करता हूँ, टेबल 8 हम पे पहुंच जाएं, टेबल 8 हम डिस्कस कर लें, then you put your question. Okay, ठीक. Okay, अगर टेबल 8 से रिलेटेड है तो everyone will be on the same platform then, है ना? तो 12 और 13 के अंदर हम जो ITC 24-25 का हमने 25-26 में दिखाया है या रिवर्स किया है that will be going into my table 12 and 13. टेबल 7 के अंदर मेरे रिवर्सल चले जाएंगे. अब मैं टेबल 8 पर आ जाता हूँ सीधा क्योंकि दैट इज वेरी क्रूशियल. जो पहले तो एक बार सर क्लैरिफिकेशन आया था कि टेबल 8 बोला और ये दोनों मिला दिया है ना, मर्ज कर दिया है. या सर हाँ हेलो तो हम आज ही देखे पहली बार. क्या जरूरत दोनों पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए, वरना अपने माइक को ऑफ कर लीजिए सर. थैंक यू. देखिए टेबल 8 एक रिकंसिलिएशन के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे मेरे को ध्यान है कि हम ऑडिट एविडेंस के लिए स्टैंडर्ड ऑडिटिंग पढ़ते थे और उसमें ऑडिट एविडेंस की कैटेगरी थी कि ओरिजिनल एविडेंस आर मोर रिलायबल देन द फोटोकॉपीड एविडेंस, थर्ड पार्टी एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन द इंटरनल एविडेंसेस. डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है वो इंफॉर्मेशन मैंने टेबल 6 में दे दी है, टेबल 7 में रिवर्सल्स दे दिए हैं, मेरे इंफॉर्मेशन GSTR 3B में है. लेकिन उस चीज को डिपार्टमेंट कोरोबरेट करना चाहता है 2B के अंदर जो डाटा आ रहा है टोटल मिला के उसके साथ. एंड वो रिकंसिलिएशन इसलिए बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टेबल 8 का रिकंसिलिएशन मैंने जो इनपुट टैक्स रेट क्लेम किया है विज जो मेरे वेंडर्स ने इनपुट टैक्स रेट मेरे को दिया है, यानी कि उन्होंने अपने 1 को फाइल किया है और उसके बेसिस पर जो हमारे पास 2B में आ रहा है, उन दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन क्या है, क्या डिफरेंस है, मैच हो रहा है नहीं हो रहा,
दैट इज अ बेसिक थिंग जो कि डिपार्टमेंट आज के डेट में बेसिकली देख रहा है। जो पहले एक प्रेस रिलीज 2 साल पहले आई थी, जब ये कहा गया था कि टेबल 8 इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, बट बिलीव मी आज की डेट में मैक्सिमम नोटिस जो आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द आईटीसी, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस अराइजिंग इन टेबल 8 ओनली। तो हम टेबल 8 को पहले फंडामेंटली डिस्कस कर लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल गो फॉर क्वेश्चन आंसर ऑन टेबल 8, बिकॉज आई फील कि इसी के रिलेटेड विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन। हो सकता है आंसर आप खुद ही दे दो, जरूरी नहीं कि मेरे पास सारे, एक डिस्क्लेमर में दे दूं कि जरूरी नहीं कि मेरे पास सारे आंसर हो, बट वी विल ट्राई टू डिस्कस इट ऑनेस्टली कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सबसे पहले हम आते हैं टेबल 8 के अंदर। 8A के अंदर ये कहता है आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2B टेबल 3I देयर ऑफ। सर एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि टेबल 2B तो स्टैटिक हो जाती है हर महीने, तो क्या ये सिर्फ 24-25 के जो 2B है उसका डाटा आएगा, या 24-25 का जो डाटा 25-26 में भी फाइल हुआ है उसका भी आएगा? सर उसका भी डाटा आएगा। प्रेस रिलीज इन्होंने एक एफएक्यू इशू किए थे, और उस एफएक्यू के बेसिस पर ये है बेसिकली 8A में वेंडर के रिटर्न्स जो फाइल हुए हैं उसके बेसिस पर डाटा है। ये कैप्चर करेगा 24-25 का वो डाटा जो कि 25-24 में ही फाइल हो गया था, 24-25 का डाटा जो 25-26 में फाइल हुआ, और एक्सक्लूड करेगा 23-24 का डाटा जो कि किसी वेंडर ने 24-25 में फाइल किया। दैट मीन्स जो जीएसटीआर 2B का जो डाटा 8A के अंदर आ रहा है वो स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट करके आएगा। आई होप आई एम क्लियर। आईटीसी के लिए टेबल 8A के अंदर सर दोबारा बता दें। मैं दोबारा बता रहा हूं सर। जो 8A के अंदर डाटा आएगा वो 2B के बेसिस पर आएगा, और वो 2B एक्सेल में डाउनलोड हो सकेगी। उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करके आएगा। देखिए जो 24-25 का जो आईटीसी हम जो वेंडर्स ने जीएसटीआर 1 फाइल किए हैं उसके बेसिस पर है। अभी हम अपने रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 2B जो कि वेंडर के अपने रिटर्न के बेसिस पर है। वेंडर ने जो जीएसटीआर 1 या 1A फाइल किए हैं उसके बेसिस पर है। वेंडर ने जो 24-25 में अपने जीएसटीआर 1 फाइल किए और उसके बेसिस पर 24-25 का जो जीएसटीआर फाइल हुआ 2B प्रिपेयर हुआ, उसमें जो 23-24 के ट्रांजैक्शन होंगे वो 8A के टेबल के अंदर हट के आएंगे। यानी कि 8A के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का डाटा आएगा 24-25 का, उसमें जो वेंडर ने 24-25 के अंदर 23-24 की इनवॉइसेस फाइल की होंगी वो इनवॉइसेस हट के आएंगी, नंबर 1। नंबर 2, कुछ वेंडर ने 24-25 के डाटा को 25-26 के अपने रिटर्न में, अक्टूबर तक के रिटर्न में भी शो किया होगा, तो वो जो रिटर्न का डाटा है वो भी डाटा ऐड होके टेबल 8A के अंदर आएगा। यानी कि टेबल 8A का डाटा जो होगा वो होगा जीएसटीआर 2B ऑफ 24-25 माइनस इनवॉइसेस इन जीएसटीआर 2B 24-25 pertaining to 23-24 plus GSTR 2B 25-26 pertaining to 24-25. I hope I am clear about this. यस सर ये क्लियर है एकदम? सर क्या इनमें डिफरेंस हो सकता है 2B के डाटा में और 6B के जो डाटा है, डिफरेंस आ सकता है? उसके ऊपर आपके इस क्वेश्चन को मैं पहले ले लेता हूं। बेसिकली जो डाटा है उसके डिफरेंस ये सर, ये देखिए बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग कि जो टेबल 8A का डाटा है वो आप एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिए, कर सकते हैं, और वो हम एडजस्ट करके डाटा को दिखा रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सेल में डाटा को डाउनलोड करेंगे और जो 8A के अंदर डाटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा वो डिफरेंस होगा उसके अंदर, हो सकता है। उस डिफरेंस के बहुत सारे रीजन है, कुछ स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पर देने की कोशिश करी है। अगर पहला है, सप्लायर ने अगर जीएसटीआर 1 फाइल किया है और उसने 3B फाइल नहीं किया आपके सप्लायर ने, तो आपके एक्सेल शीट में नजर आएगा उसमें स्टेटस नॉट येट फाइल्ड आएगा,
लेकिन आपके 8A जो आपके डाटा आ रहा होगा 9 के अंदर, उसके अंदर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आ रहा होगा। अगर आपके वेंडर ने प्लेस ऑफ सप्लाई आपका स्टेट नहीं लिखा है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप दिल्ली बेस्ड हैं, आपका रिटर्न जीएसटी रिटर्न दिल्ली का जाना है, आपके वेंडर ने जो इनवॉइस इशू करी है दिल्ली के जीएसटी पर इशू करी है, लेकिन उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र लिख दिया है, सही है गलत है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपके 8A के एक्सेल में तो आ रहा होगा, लेकिन आपके बेसिकली आपके 8A के डाटा में नहीं आएगा। इसी हिसाब से कुछ डाटा अगर कट ऑफ डेट के बाद फाइल हुआ है तो उसके लिए भी नहीं आएगा, बाद में अगर उसने जीएसटी नंबर में अमेंडमेंट कर दिया है तो वो डाटा भी आपके 8A में पॉपुलेट नहीं होगा। तो बेसिकली जो पॉइंट है जो सर ने पूछा कि 8A के अंदर आपका डाटा आउटपुट पॉपुलेट होगा, लेकिन जो एक्सेल शीट आप डाउनलोड करेंगे उस एक्सेल शीट में हो सकता है अमाउंट में कुछ डिफरेंस आए, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअली दोज डिफरेंसेस। वो डिफरेंस बेसिकली वो डिफरेंसेस हो सकते हैं जो 8A में तो आ रहा है लेकिन डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। सर आगे बढ़े हम। सर एक सिस्टम शेयर कर सकते हैं सर इसमें? हाँ, ये मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। आई विल नहीं सर मैं अपने सिस्टम शेयर करने के बाद जो मेरे में आ रहा है, क्योंकि 8A में मेरा जो डाटा आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है और मेरे जो मैंने बनाया है जिस हिसाब से वो 6 में कम आ रहा है। 7,000 वो बेटर रहेगा आप मेरे से 1-to-1 शेयर करके डिस्कस कर लीजिएगा बाद में, बेटर है कि फिर सभी लोग उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ ओके सर। और डाटा को देखने में टाइम लग सकता है, आई एम नॉट श्योर कि कितना टाइम लगे, तो बेटर है कि हम इसको कर लेते हैं। आप मेरा नंबर है ही, आप वो मेरे को 1-to-1 डाटा शेयर करके वी कैन डिस्कस ओवर फोन या जैसे जूम पे बाद में। ओके सर। और इसके बाद में टेबल 8B के अंदर आईटीसी एज पर टोटल 6B। सर 6B में क्या डाटा था, मेरे जो GSTR 3B 24-25 का डाटा 24-25 के लिए था वो डाटा 6B में आ गया। फिर इसके बाद में एक फर्क क्या रह गया यहाँ पे, वो फर्क रह गया कि 6A के अंदर 8A के अंदर वो डाटा है भी है जो 25-26 में फाइल हुआ है 24-25 का, जबकि 6B में वो डाटा नहीं है, तो वो हम टेबल 8C के अंदर ऐड कर देंगे। ITC ऑन द रिवर्स इनवर्स सप्लाई रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टू स्पेसिफाइड पीरियड, ये हमें मैनुअली डालना पड़ेगा। तो 8C का जो फिगर है टेक्निकली दैट शुड बी मैचिंग विद टेबल नंबर 12 एंड 13, एंड ये जब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो टेबल नंबर 6A1 से मैच करना चाहिए। जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंटिंग आउट कि पहले हमने 6A1 के अंदर जो 23-24 का डाटा है वो हमने हटा दिया। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट ईयर फाइल करेंगे यानी कि 25-26 का जब एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो उस 25-26 के रिटर्न में 24-25 के डाटा को हटाएंगे, तो वो जो डाटा का है वो मेरा 8C से मैच करना चाहिए। इसके अलावा मेरा जो डाटा है टेबल 12 और 13 है उसमें भी मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि मेरा नेक्स्ट ईयर में कितना डाटा गया है, वहां से भी मेरा टेबल 8C मैच करना चाहिए। तो टेबल 6A में डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा, टेबल 8B के अंदर डाटा विल बी कमिंग फ्रॉम टेबल नंबर 6B जो कि A-A1 है, एंड C के अंदर 8C के अंदर मैं डाटा मैं खुद डालूंगा वो इंफॉर्मेशन वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि 24-25 का है और मैंने उस 25-26 में क्लेम किया है, और उसके डिफरेंस को हमें बताना पड़ेगा। अगर हमारे हिसाब से कोई अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है, एलिजिबल है, तो वो जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस वी हैव टू एक्सप्लेन। टेक्निकली इट शुड मैच, जैसा भी सर ने बोला कि 8A और जो एक्सेल शीट है उसमें डिफरेंस आता है, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअली कि क्या सही है, उसके हिसाब से वी हैव टू एक्सप्लेन हियर। बेटर ये रहेगा कि अगर किसी वजह से मेरा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डाटा ऑफ 8A और मेरे हिसाब से डाटा कुछ और है, तो मैं एक प्रॉपर रिकंसिलेशन बनाऊं और उस प्रॉपर रिकंसिलेशन को 9C में एज अटैचमेंट लगा दूं। अगर मेरे हिसाब से देयर आर सम डिफरेंसेस जो कि 8A में डाटा जो डिपार्टमेंट कह रहा है 10 लाख रुपए, मेरे हिसाब से 11 लाख रुपए होना चाहिए था, या मेरे हिसाब से लाख रुपए होना चाहिए था, 10 लाख रुपए होना चाहिए था, वॉट एवर इट में बी, अगर वो मेरे हिसाब से डाटा कुछ गलत है 8A के अंदर, बेटर ये है कि मैं उसकी एक्सेल शीट को डाउनलोड करके
रिकंसिलेशन कर सकता हूं तो उस रिकंसिलेशन को, नहीं कर सकता हूं तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट डाटा है वो एक डाटा सही टेबल 8 बना के आई कैन अटैच इन माई 9C फॉर द पर्पज ऑफ कल की डेट में अगर कोई नोटिस आता है, कुछ आता है, तो वी कैन एक्सप्लेन कि वी हैव डन इन दैट वे। क्योंकि ऊपर टेबल 8A के अंदर मेरा इनवर्ड सप्लाई जो मैं रिवर्स चार्ज इंक्लूड नहीं है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड नहीं है, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स को मैं G, H और H1 में बेसिकली रिकंसाइल करता हूं। इसके अंदर क्या H1 टेबल एक इंट्रोड्यूस हुई है, नई टेबल। G के अंदर तो मैं IGST जो भी मैंने इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर पे किया है वो मैं ले लूंगा। दैट शुड आई बेसिकली टेक फ्रॉम माई एक्चुअल जो भी मेरे इंपोर्ट के ट्रांजेक्शन हैं उससे मेरे को ये लेना चाहिए कि मैंने जितने भी इंपोर्ट किए हैं गुड्स के अंदर और जितना उसके ऊपर टैक्स पे किए हैं, चालान पे किए हैं, दैट शुड कम हेयर, क्योंकि वो थर्ड पार्टी एविडेंसेस हैं जो भी मैंने कस्टम में चालान पे किए हैं उससे मेरा बेसिकली बिल ऑफ एंट्री से शुड मैच कि मेरे कितने मेरे इंपोर्ट ऑफ गुड्स हैं और कितने के ऊपर टैक्स पे किया है। टेक्निकली स्पीकिंग ये वाला डाटा हमें डायरेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ जो मेरे बिल ऑफ एंट्री हैं उससे साथ कॉरस्पॉन्डिंगली मैच करना चाहिए कि उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। वी विल टेक द टोटल इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हमने कब दिखाया है अपने रिटर्न्स में, कब नहीं दिखाया है, वो हम रिकंसिलेशन फर्दर कर देंगे। एच के अंदर मेरा 6E से डाटा आ जाएगा, यानी कि जो 24/5 का 24/25 में ही मैंने इनपुट टैक्स रेट क्लेम किया है वो एच में आ जाएगा। 24/25 का जो मैंने 25/26 में क्लेम किया है वो मेरा IGST में आ जाएगा। टेक्निकली कोई डिफरेंस बचेगा नहीं, और अगर बचेगा तो वो मैं 8I के अंदर मेरा डिफरेंस आ जाएगा। ITC का मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ टेबल 12 में एक रिकंसिलेशन करूंगा और कोई डिफरेंस होगा तो दैट विल आई विल डिक्लेयर। और टेबल 14 एक बेसिकली मेरा ऑप्शनल है, एक्सपेंसिव वाइज रिकंसिलेशन मेरे को देना जरूरी नहीं है कि मैं टेबल 14 के अंदर दूं। अब टेबल 8 से रिलेटेड या टेबल 6 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक दोस क्वेश्चंस। देयर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू टेबल 8, वी कैन टेक दोस क्वेश्चंस। यस प्लीज। हाँ सर, कोई क्वेश्चन था टेबल 8 से रिलेटेड, वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन। हेलो सर जैसे या एक चीज पूछना था, जैसे हमने हमारी बैलेंस शीट तो ऑडिट होगी, हमने एक इनवॉइस इस 24-25 का था ना, उसे बैलेंस शीट में दिखाया ना हमारी बुक्स अकाउंट्स में है, तो अब क्या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसे क्लेम कर सकते हैं? तो उसका जो हमें इनपुट होगा तो वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया, पर 9C में कहाँ दिखाएंगे उसको कि सर मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम करता हूँ, बता दीजिए आप यही पूछ रहे हैं क्या? सर का क्वेश्चन ये है कि लेट्स से 15 मार्च 2025 की इनवॉइस है 1 लाख रुपए की, 18,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उसको ना तो मैंने GSTR 3B में दिखाया, ना ही मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया, मैं उसका क्या करूंगा? सर ये क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, अरुण, ये ITC है, ये ITC है। हाँ ITC हमने 3B में भी क्लेम नहीं किया, 1 में भी क्लेम नहीं किया। सर फंडामेंटली एक चीज समझने की कोशिश करिए कि मैं GSTR 3B में कितना क्लेम करूंगा उसका मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स मेरे को 3B में क्लेम करने के लिए आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन माई बुक्स ऑफ अकाउंट। वो तो 9C में एक रिकंसिलेशन जा रहा है फॉर पर्पज ऑफ रिकंसिलेशन, लेकिन उससे मेरा कोई राइट मिलता या राइट रिफ्यूज नहीं होता। तो अगर आपकी 15 मार्च 2025 की इनवॉइस है तो या तो आपको 24-25 में ही उसको क्लेम कर लेना चाहिए। 24-25 में आपने क्लेम नहीं किया है तो ये अक्टूबर के रिटर्न जो जानी है 3B आप इसमें क्लेम कर लीजिए, इसके बाद आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। इट विल बी इररिलेवेंट कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कहां दिखाते हैं। आई होप आई एम सब क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके इनवॉइस की डेट 24-25 की है तो आप 24-25 या अक्टूबर 25 तक के रिटर्न में उसको शो कर सकते हैं। आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब दिखाया है दैट इज नॉट रिलेवेंट टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आपके डिफरेंस का पार्ट बन जाएगा। आपने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगले साल दिखाया, एज ए प्रायर पीरियड आइटम दिखाया, कैसे दिखाया, दैट विल बी एज योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेकिन GST से ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ेगा।
Arun ji, I hope I am clear. Yes, sir. Yeah. Yeah, Ganesh ji, there was some question from your side. There was some question for table 8 also. Yeah. Hello, sir. No, actually, the question which was there, but you answered that the 8C of earlier year should be matched with the 6A of next financial year of GSTR Yeah. 9. Okay, Right. that's Okay, sir. Sir, Thank you. if I have understood correctly, interpreting if you miss an invoice, then it has to be taken credit off, note off in the subsequent year, and there should be no amendment or inclusion in the current year. जो लास्ट क्वेश्चन अरुण जी का आया था, उसी रेफरेंस में बात कर रहे हैं सर? हाँ, मैं उसी का समराइज कर हाँ रहा सर, हूँ। बेसिकली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिया था। जीएसटी लॉ के अंदर इनपुट टैक्स राइट करने का मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, जो डिपार्टमेंट रिकंसिलिएशन मांगता है। बट आईटीसी अगर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंसेस बुक नहीं किया इस साल और अगले साल क्लेम किया है, आई कैन शो इन माय नोट्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जांपल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी 24-25 की इनवॉइस है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको भूल गया, मैं 25-26 में उसको बुक करता हूँ। कैसे करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू इट, उसका मेरे को बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आई एम क्लेमिंग इनटू 25-26 इनटू माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्वेश्चन ये था, मैं उसको इनपुट टैक्स रेट 25-26 का मानूंगा कि 24-25 का मानूंगा? सर बड़ा क्लियर है, फ्रॉम द जीएसटी लॉ पर्सपेक्टिव दैट विल बी द इनपुट टैक्स रेट ऑफ 24-25 only, not for 25-26. That we have to take care. Yes, sir. Right. Understood. Clear. Okay, sir. सर इसके अलावा टेबल 9 इंपॉर्टेंट है जीएसटीआर 9 की, कि टोटल टैक्स कितना बैठता है। मैं जो अपने इनपुट टैक्स रेट और आउटपुट टैक्स के हिसाब से जो मेरा टोटल टैक्स बैठता है, वो मैं पेबल यहाँ पर आ जाती कैलकुलेशन में मैनुअली भी अपनी एक्सेल शीट में कर सकता हूँ, एंड आई हैव टू सी कि मैंने जो टोटल टैक्स पे किया है उससे अगर कोई डिफरेंस है तो आई हैव टू पे, और बिकॉज दैट टेबल बिकम्स रिकंसिलेशन, फाइनल रिकंसिलेशन, कि मेरा कितना टैक्स बैठता है और मैंने कितना पे किया। that should be done and reconciled. पेबल वाली कॉलम is editable और इसमें हम अपने हिसाब से फिगर को डाल सकते हैं। Another important aspect from practical, I think स्क्रूटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, HSN रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हम GSTR 1 के अंदर दे रहे हैं, तो वो जो GSTR 1 से समरी जो हमारी HSN की है वो आपके स्पेशल एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी, दैट वी कैन यूज फॉर आवर GSTR 9 ऑल्सो। इनवर्ड सप्लाई की कंपलसरी नहीं है, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई के लिए 4 डिजिट या 6 डिजिट के HSN कोड मेरे को यहाँ शो करने हैं। देखिए व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये HSN अगर हम एक कंट्री के लेवल पर देखें तो बिकम्स वेरी क्रूशियल टू डिटरमाइन कि कौन से गुड्स और सप्लाई कितनी हो रही नहीं हो रही। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम पहले GSTR 1 में जो अपने HSN शो कर रहे हैं दैट आर अप्रोप्रिएटली शोन, क्योंकि दैट कैन लीड टू शो कोज नोटिस अगर हमारे HSN और हमारे रेट आपस में मैच नहीं कर रहे। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम जो HSN अपने GSTR 1 में डिक्लेयर कर रहे हैं वो समरी हमारी GSTR 9 के लिए डाउनलोड हो जाएगी। अगर किसी वजह से कोई गलती है तो बेटर ये है कि हम GSTR 9 के अंदर सही HSN कोड को डिक्लेयर कर दें, बट दैट वी हैव टू डिसाइड केस टू केस बेसिस। ये थोड़ी सी चीजें प्रैक्टिकली व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। 24-25 के लिए सेक्शन 73-74 में क्योंकि नोटिस शो होते हैं डिपार्टमेंटल फॉर द टैक्स और अदरवाइज, तो वो 74A एप्लीकेबल होगा 24-25 में, दैट वी हैव टू टेक केयर। इसका जो टाइम लिमिट है वो 42 मंथ्स है, यानी कि जो 24-25 का नोटिस है वो 30 जून 2029 तक आ सकता है, दैट वी हैव टू टेक केयर। तो इसलिए जो क्रॉस ओवर ट्रांजेक्शन है और उनकी हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल कि हम उसको कैसे कर रहे हैं। दूसरा जो मेजर एस्पेक्ट है, जो फ्रॉड के केसेस हैं 74 के अंदर भी एप्लीकेबल होगा, उसमें एक सप्रेशन भी कवर होता है, और सप्रेशन में इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, सप्रेशन मींस नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द फैक्ट और इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन और डिक्लेरेशन करनी चाहिए। दैट मींस अगर हमें कोई GSTR रिटर्न्स के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कॉलम है और वो डिक्लेयर करना चाहिए, हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो दैट में टेंट अमाउंटिंग टू सप्रेशन ऑफ फैक्ट, और उसके हिसाब से पेनल्टीज और दूसरी चीजें बेसिकली कैन लीड टू अदर थिंग्स। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 993 के अंदर बेसिकली हम एडिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स हैं जो वी हैव टू कीप इन माइंड
मेरे टर्नओवर रिकंसिलेशन, मंथली बेसिस पर आउटवर्ड लायबिलिटी का रिकंसिलेशन, टैक्स का रेट वाइज रिकंसिलेशन, आईटीसी के क्रॉस चेक मैं 3B के साथ कर लूं, क्लोजिंग बैलेंसेस जो मेरे बुक्स के अकाउंट्स के हिसाब से जो है वो मेरे को करने हैं, और स्पिल ओवर मैनेजमेंट दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल कि मेरा जो 23-24 का डाटा 24-25 में है, 24-25 का डाटा जो 20-26 में है वो मैं प्रॉपर रिकंसिलेशन करूं और उसको मैं प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करूं। ये की चेंजेस हैं जो मैंने बीच में डिस्कस कर लिए हैं कि कहां पर चेंजेस आए हैं, टेबल 8A के अंदर, टेबल 8C के अंदर, टेबल 6A1, टेबल H1 और GSTR 1A जो मैं अमेंडमेंट कर रहा हूं पूरे साल भर में, those are reflecting here also. So that was a very brief discussion from my side for basic concept for 9 and 9C. जो नई टेबल आई हैं वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, कैसे हमें रिकंसिलेशंस को देखना है। अगर उससे रिलेटेड वी हैव सम क्वेश्चंस so we can take it, or otherwise we'll wind up the things. Sir, any question?